عوام کے محسن نے عوام کی ایک اور مشکل حل کر دی۔ شملہ پہاڑی ساندہ روڈ پیکو روڈ پر پاسپورٹ پروسیسنگ کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے۔ شملہ پہاڑی نادرا سینٹر میں پاسپورٹ دفتر 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ ساندہ اور پیکو روڈ نادرا سینٹر کے پاسپورٹ دفاتر رات 11 بجے تک کھلے رہیں گے۔ محسن نقوی کی ہدایت پر لاہور میں مزید 3 پاسپورٹ دفاتر آپریشنل کر دیے گئے ہیں۔ ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی نے 2 پاسپورٹ دفاتر رات 11 بجے تک جبکہ ایک کو 24 گھنٹے کھولنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سائلین کی سہولت کے لیے شملہ پہاڑی، ساندہ اور پیکو روڈ پر پاسپورٹ دفاتر آپریشنل کیے گئے ہیں۔ نادرا سینٹر شملہ پہاڑی میں قائم پاسپورٹ دفتر 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ ایک اچھا اقدام کیا ہے یہاں پہ، پاسپورٹ ان کے لیے آسانی کر دی ہے، آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ہی آپ کا اچھا کام چل رہا ہے ہمارا۔ میں نیکسٹ ٹائم بھی ہم نے یہی سوچا کہ ہم جب آئیں لمبی قطاروں سے بچیں اور ادھر آ کے اپنا کام کروائیں۔ اتنی دور جانا پڑتا تھا، کام چھوڑنے پڑتے تھے، آگے سے جب باری آتی تھی تو ٹائم ختم ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہمیں بہت سہولت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ آتے ہیں، اپنا کام لگتے ہیں، لائنوں میں نہیں زیادہ لگنا پڑتا، ساری جگہ سراؤنڈنگ وغیرہ ایریا خالی پڑا ہے۔ ریجنل ڈائریکٹر پاسپورٹ خالد عباس کے مطابق شہریوں کی سہولت کے لیے دفاتر کو کھولا گیا ہے۔ بہت زبردست انیشیٹو ہے جو ہمارے منسٹر آف انٹیریئر ہے ان کی طرف سے پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس وقت ہم 3 یہاں پہ پاسپورٹ آفسز جو ہم یہاں پہ اسٹیبلش کر چکے ہیں نادرا کے کوآپریشن کے ساتھ۔ نمبر 1 ہمارا یہ پیکو روڈ پہ یہ 2 شفٹس میں چلے گا، اس کے بعد ایجرٹن روڈ پہ 24/7 ہماری پاسپورٹ فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی، اور 3rd نمبر پہ ساندہ روڈ پہ وہاں پہ ہمارے پاس 2 شفٹس میں اویلیبل ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے احکامات کی روشنی میں سائلین کی سہولت کے لیے شہر میں اب 2 دفاتر 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ کیمرہ مین رضوان کے ساتھ شاہد سپراس سٹی 42۔ پراپرٹی ٹیکس وصولی کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے۔ شہری علاقوں سے باہر ہاؤسنگ سوسائٹی سے بھی ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ حکومت سے منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے وصولی ہوگی۔ نئے سسٹم کے تحت ڈی سی ریٹ پر ٹیکس کو وصول کیا جائے گا۔ اب شہری علاقوں سے باہر ہاؤسنگ سوسائٹی سے بھی پراپرٹی ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ حکومت سے منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رہائشیوں سے وصولی ہوگی۔ ایکسائز حکام کے مطابق منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے نئے سسٹم کے تحت ڈی سی ریٹ پر ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ای ٹی او ایکسائز کو اختیار ہوگا کہ وہ منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائش پذیروں کی ٹیکس تشخیص کرے۔ شہر سے باہر ہاؤسنگ سوسائٹیز کو سسٹم میں شامل کرنے سے کروڑوں روپے ٹیکس وصولی میں اضافہ متوقع ہے۔ قبل ازیں پنجاب بھر میں 25 لاکھ کے قریب پراپرٹی مالکان ٹیکس نیٹ میں شامل ہیں۔ محکمہ ایکسائز حتمی منظوری کے لیے سمری رواں ہفتے حکومت کو بھجوائے گی۔ اسکولوں کے سربراہان کو ماہانہ 12,500 روپے تک اضافی الاؤنس دینے کا فیصلہ۔ پرائمری اسکولوں کے سربراہان کا الاؤنس 500 سے بڑھا کر 5,000 ماہانہ کر دیا گیا۔ مڈل اسکولوں کے سربراہان کا الاؤنس 700 سے بڑھا کر 7,500 روپے ماہانہ کر دیا گیا ہے۔ ہائی اسکولوں کے سربراہان کا الاؤنس 1,200 سے بڑھ کر 10,000 روپے ہوگا۔ پرائمری، مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کے سربراہان الاؤنس بڑھانے کا فیصلہ۔ اسکول سربراہان کو ماہانہ 5,000 سے 12,500 روپے تک اضافی الاؤنس دیے جائیں گے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ ہیڈ ٹیچر الاؤنس کا حتمی شیڈیول جاری کر دیا جائے گا۔ پرائمری اسکولوں کے سربراہان کو 500 کے بجائے اب 5,000 روپے ماہانہ الاؤنس دیا جائے گا۔ مڈل اسکولوں کے سربراہان کا الاؤنس 700 سے بڑھا کر 7,500 روپے ماہانہ ہوگا۔ ہائی اسکولوں کے سربراہان کا الاؤنس 1,200 سے بڑھا کر 10,000 روپے ماہانہ ہوگا۔ ہائر سیکنڈری اسکولوں کے سربراہان کا الاؤنس 1,250 سے بڑھا کر 12,500 روپے ماہانہ ہوگا۔ پنجاب بھر میں اسکولوں کی تعداد 42,937 ہے۔ پرائمری اسکولوں کی تعداد 26,000 اور مڈل اسکولوں کی تعداد 7,200 ہے۔ ہائی اسکولوں کی تعداد 8,100 اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کی تعداد 900 ہے۔ بائیکرز لین کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ ماڈل ٹاؤن موڑ سے لاہور برج تک کام کا آغاز۔ 12 فٹ چوڑی لین کی تعمیر کے لیے بورڈز لگا دیے گئے، جبکہ فیروز پور روڈ پر 10 کلومیٹر طویل ٹریک بنایا جائے گا۔ لاہور کینال سے کلمہ چوک کے بعد اب ماڈل ٹاؤن موڑ سے لاہور برج تک بائیکرز لین کے دوسرے مرحلے پر کام کا آغاز ہو گیا۔ چیف انجینئر، پروجیکٹ ڈائریکٹر اور انجینئرنگ ونگ کی ٹیم نے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ روڈ کٹ لگا کر لین کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا ہے۔ 12 فٹ چوڑی لین کی تعمیر کے لیے بورڈز لگا دیے گئے ہیں۔ لین مارکنگ اور کم ہائٹ NJ بیریئر کی تعمیر بھی شروع کر دی گئی ہے۔ دونوں سیگمنٹ کو ملا کر فیروز پور روڈ پر 10 کلومیٹر طویل ٹریک بنایا جائے گا۔ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں ادویات کی عدم دستیابی سنگین مسئلہ بن گئی۔ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں کے آؤٹ ڈور سمیت زیر علاج مریض مفت ادویات سے محروم۔ ٹیچنگ اسپتالوں میں آپریشن کے لیے ڈسپوزیبلز بھی مریض خود خریدنے پر مجبور۔ 3 اسپتالوں کے انتظامی سربراہان کو شوکاز نوٹس جاری۔ بقایا جات ادا نہ کرنے پر ادویات کی قلت بحران کا روپ اختیار کر گئی۔
सरकारी टीचिंग हस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तयाबी संगीन मसला बन गई। 3 हस्पतालों के इंतजामी सरबराहान को मुफ्त अद्वियात न मिलने पर शोकाज नोटिस भी दिए गए, लेकिन मसला जूं का तू है। जराये के मुताबिक सरकारी टीचिंग हस्पतालों के जिम्मे अरबों रुपए वाजिबुल अदा हैं। बकायाजात अदा न करने पर टीचिंग हस्पताल में अद्वियात की किल्लत बहरान का रूप इख्तियार कर गई। सरकारी टीचिंग हस्पताल को फंड्स की कमी का भी सामना है। अस्पतालों के आउटडोर समेत जेरे इलाज मरीज मुफ्त अद्वियात से महरूम हैं। ऑपरेशन के लिए डिस्पोजेबल्स भी मरीज खुद खरीदने पर मजबूर हैं। बताएं कि ओपन मार्केट में खुद साख्ता महंगाई, यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरोनोश का बहरान। शहरी चक्रा गए। ओपन मार्केट में 20 किलो आटा 1700 से 1730 रुपए तक फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का नामो निशान तक मौजूद नहीं। ओपन मार्केट में चीनी 140, शक्कर 300 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब है और ना ही शक्कर। शहर में एक जानिब ओपन मार्केट में महंगाई ने पंजे गाड़ रखे हैं तो दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशियाए खोरोनोश की किल्लत ने सारिफीन को चकरा कर रख दिया है। ओपन मार्केट में 20 किलो आटा 1700 से 1730 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का नामो निशान तक मौजूद नहीं। ओपन मार्केट में चीनी 140, शक्कर 300 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब है और ना ही शक्कर मौजूद है। ओपन मार्केट में दर्जे अव्वल ऑयल 575 से 584 रुपए किलो का है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर किसी दर्जे का भी खुर्दनी ऑयल या घी दस्तयाब नहीं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की हदूद में लगाए गए 81 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 24 नाकारा होने का इंकशाफ। सिर्फ 54 प्लांट से ही साफ पानी फ्राहम किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की मालियत से लगे प्लांट्स की खराबी का मामला पंजाब असेंबली में उठा दिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर की हदूद में लगाए गए 81 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में 24 नाकारा हो गए। करोड़ों रुपए की मालियत से लगे प्लांट्स की खराबी का मामला पंजाब असेंबली में उठा दिया गया। हुकूमती रुकन असेंबली उज़्मा कारदार ने अवाम में शहर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से मुतल्लिक सवालात जमा करवाए। महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से जवाब आने पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी अयां हो गई। महकमा बल्दियात के मुताबिक कॉर्पोरेशन के जेर इंतजाम 81 प्लांट्स ऑपरेशनल किए गए। माली साल 2022 और 23 में खराब और नाकारा हुए 24 प्लांट्स पर एक पाई भी खर्च नहीं की गई। शहर के 66 प्लांट्स पर ऑपरेटर्स तैनात हैं, जबकि 15 प्लांट्स पर ऑपरेटर्स ही मौजूद नहीं। अब तक सिर्फ दातागंज बख्श जोन इंतजामिया ने मजमूई तौर पर 26 लाख रुपए प्लांट्स की देखभाल पर ही खर्च कर दिए। खराब और बंद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के लिए 8 करोड़ 41 लाख 69 हजार रुपए का तखमीना ऐवान के सामने रखा गया। हाईकोर्ट ने एंटी रेप एक्ट पर अमल से मुतल्लिक मामले पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को तलब कर लिया। 3 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि सिस्टम को ठीक करना है। IG पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब और FIA सब मिलकर बैठ जाएं, रूल्स में कमी कोताही को दूर करके मामले का काबिल अमल हल निकालें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद के मुतल्लिक केस की समाअत की। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद अली शाह, एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत दीगर अफसरान पेश हुए। कै मकाम एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन अजहर अकरम, डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम हशमत कमाल समेत दीगर अफसरान पेश हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि रेप और मुनशियात के जराइम अब सबसे ज्यादा हो चुके हैं। कत्ल केसेस तीसरे नंबर पर आ गए। अदालत का बुनियादी मकसद एंटी रेप एक्ट के निफाज को उसकी हकीकी रूह में यकीनी बनाना है। ऐसे इकदामात उठाए जाने चाहिए कि बोगस केसेस रिपोर्ट ना हों। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक ने रिपोर्ट पेश करते हुए अदालत को बताया कि FIR की बढ़ती हुई तादाद को मनफी अंदाज में देखा जा रहा है। जस्टिस अलीजा बाजवा ने कहा कि बताया जाए झूठी FIR दर्ज करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद से उठाए गए इकदामात की रिपोर्ट पेश की। IG ने बताया कि सेफ सिटी के तावन से वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कायम किया गया है। रेप केसेस के लिए मजीद तफ्तीशी अफसरान भर्ती किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि एंटी रेप एक्ट पर अमल नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि अगर अदालतें मुलजिम को बरी कर दें तो फिर प्रोग्राम और प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। अदालतें मुतासरीन या मुलजिमों का साथ नहीं देती बल्कि कानून के मुताबिक फैसला देती हैं। बेंच ने एंटी रेप एक्ट केस के मुतालिक केस की मजीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। आपको बताएं कि पंजाब असेंबली का इजलास अपोजिशन के शोर शराबे और एहतजाज के सबब ऐवान मछली मंडी बना रहा। हुकूमत ने शदीद एहतजाज के बावजूद एक ही रोज में 12 बिल्स मंजूर करा दिए।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 30 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास के आगाज ही में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी तंजिया जुमलों के नश्तर चलाए। मुझे सुन तो नहीं राणा साहब, मेरी बात सुने, ये आप मुझे करते अच्छे बड़े लगते हैं। अराकीन के सवालात के जवाब में मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमत ने सख्त इकदाम उठाए हैं, जिसके नतीजे में स्मोक में कमी आई। तो पूरे पंजाब में तारीख में पहली दफा 50 करोड़ से 17 बिलियन का बजट दिया गया है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को। इनको मैंने पहले बताया था मेंबर्स को और हाउस को। इनका क्राइटेरिया क्या है? इट्स अ बिग अमाउंट सर। हुकूमत ने बिल मंजूरी की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन ने शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदेही के बावजूद डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली जहीर इकबाल चन्नड़ ने एक न सुनी तो अपोजिशन अरकान ने बिल्स की कापियां फाड़कर हवा में लहराते हुए बाहर जाने को तरजीह दी। हुकूमत ने 12 मसवदात कसरत राय से मंजूर करा लिए। मसवदा कानून तरमीम तनाजात का मुतबादिल हल, पंजाब 2025 तरमीम पतंगबाजी की ममानियत, एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी बिल मंजूर किए गए। वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी पंजाब बिल, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद से मुतल्लिक खसूसी अदालतों के क्याम का बिल भी मंजूर कर लिया गया। मसवदा कानून तरमीम पंजाब त्यानजन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर, मसवदा कानून तरमीम पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी समेत दीगर बिल्स की मंजूरी दी गई। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पोस्ट बजट पर आम बहस का आगाज किया। एजेंडा पूरा होने पर इजलास मंगल की दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक का PMA हाउस का दौरा, निज़ाम सेहत की बेहतरी और अताइयों के खिलाफ कार्रवाई पर गुफ्तगू। सदर PMA पंजाब डॉक्टर कामरान शेख, मरकजी सदर प्रोफेसर इजहार चौधरी, प्रोफेसर अशरफ निज़ामी भी मौजूद थे। PMA हाउस के दौरे के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर इजहार चौधरी, डॉक्टर कामरान शेख भी ख्वाजा सलमान रफ़ीक के हमरा थे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान के दरमियान मेडिकल कम्यूनिटी के मसाइल के हल पर बातचीत हुई। निज़ाम सेहत की बेहतरी के लिए जदीद इस्लाहात, अताइयों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई, पॉइंट ऑफ सेल और दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक आवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी के लिए कोशा हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात, मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकामात जारी किए। IG ने मरहूम पुलिस एहलकार मोहम्मद आसिफ की बेवा की दरख्वास्त पर DPO सियालकोट को रिलीफ की हदायत की। शहीद कांस्टेबल नदीम तनवीर की वालिद की दरख्वास्त पर DPO अवकाड़ा को रिलीफ के अहकामात जारी। इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद की प्रमोशन से मुतल्लिक दरख्वास्त पर एडिशनल IG पंजाब को रिलीफ की हदायत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिक दीगर दरख्वास्तों पर भी अहकामात जारी किए। एक्सपो सेंटर में पार्क फार्मा एंड हेल्थ के नुमाइश और कॉन्फ्रेंस वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। कहते हैं कि जाली अद्वियात का काम करने वालों को कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के ताउन से एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा 18वीं पार्क फार्मा एंड हेल्थ के नुमाइश और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबू जरशाद, कामरान अब्बास, तनवीरुल हक, आसिम रऊफ, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शरीक हुए। साथ जावेद अकरम, मोहम्मद सुहेल, शफीक अहमद अब्बासी, अमानुल्लाह शेख, मियाँ असद शुजाउर रहमान, ख्वाजा शाहजेब अकरम ने शिरकत की। चौधरी मोहम्मद यूसुफ अली, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर आजम और दीगर शरीक हुए। नुमाइश में कौमी और बैनुल अक़वामी 100 कंपनियों ने 400 स्टॉल लगाए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का 2 रोज़ा 23वां कॉन्वोकेशन हज़ारों तलबा को डिग्रियां और मेडल से नवाजा गया। वाइस चांसलर GCU यूनिवर्सिटी का कहना है GCU में म्यारी तालीम दी जा रही है। बुखारी ऑडिटोरियम GCU में 2 रोज़ा 23वीं कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। पहले रोज 735 तलबा को डिग्रियां और मेडल्स दिए गए। PhDs भी डिग्रियां और गोल्ड मेडल वसूल किए, जबकि मजमूई तौर पर 2 रोज़ा कॉन्वोकेशन में 3078 तलबा को मेडल्स, रोल ऑफ ऑनर्स, डिग्रियों से नवाजा गया। वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली शाह ने कहा, हमने हमेशा अहमियत के हामिल कोर्सेज को तरजीह दी। हमारे इदारे में म्यारी तालीम दी जा रही है। मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का है जिसमें मसनूई जहानत पर काम किया जा रहा है। It has become increasingly difficult for the common man to afford quality education. We at GCU make it point not to deprive talented students from seeking quality education due to paucity of financial resources. The GCU Endowment Fund
stands for rupees 774.93 million. तालिब इल्मों ने भी इज़हार ख्याल किया। बंजर ज़मीन में जिस तरह हल चलाया जाता है तो इसी तरह ये मेरे पेरेंट्स हैं, इन्होंने मेरे बंजर जहन में जो हल चलाया और एक तलीम का पौधा बोया और जो कि आज कादावर दरख्त बन गया है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरे साथ मौजूद हैं। इट्स एन ऑनर अपने अल्मा मैटर की बेस्ट ग्रेजुएट बनना एंड आई एम थैंकफुल टू अल्लाह एंड माय पेरेंट्स, सब कुछ इनकी वजह से है। वीसी GCU काला शाह काको में नई ब्रांच में तुलबा के लिए हॉस्टल की सहूलियात के साथ साथ स्कॉलरशिप का ऐलान भी किया गया। कैमरा टीम जामिन अब्बास, मोहम्मद नदीम के हमरा मायदा वहीद, CT42।